السلام علیکم دوستو، پھر سے آپ کی خدمت میں موجود میں محمد رمیز خان پیش سے خدمت کہکشاں 11 کلاس 11 کہکشاں حصہ اول کا دوسرا چیپٹر جو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں، اسی میں خطوط چل رہا ہے ابھی، تو خطوط کی کلاس کو ہم لوگ پورا کریں گے۔ دوستو ساتھیوں، جیسا کہ اس چینل کا سپورٹ کیجیے آپ لوگ، بہت سے خامیاں بھی ہے، میں بھی دیکھتا ہوں، لیکن پھر بھی کوشش یہی ہے کہ ہم لوگ ایک چھوٹے یوٹیوبر ہیں، ہمارے پاس اتنے آلات موجود نہیں ہیں، اور جتنے آلات ہونے چاہیے، جتنی سامانی ہونے چاہیے وہ نہیں ہے، پھر بھی موبائل کے ذریعے آپ کو کلاس میں دے رہا ہوں۔ میری بھی ایک شوق ہے اور آپ کی بھی شوق ہونی چاہیے کہ اردو سیکھنے کی۔ اور رہی بات، یہ زبان جو ہے بہت ہی پیاری، بہت اچھی زبان، تہذیب کی زبان ہے، اور اس کی زبان کی جو ہماری مادری بھاشا ہے، اس کی حفاظت ہم سبھی مل کر کریں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ تو اس کلاس کو شروع کرنے سے پہلے ایک شعر ہے کہ سلیقے سے ہواؤں میں ہم خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں ہم خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ تو دوستو، اسی شعر سے اس کلاس کا آغاز۔ اسد اللہ خان غالب نے ابھی بہت سارے خطوط آپ کو، جیسے 900 خطوط ہے، تو ہم نے تو ابھی پہلا دوسرا چل رہا ہے خط، تیسرا بھی خط باقی ہے، وہ بھی پڑھائیں گے۔ تو یہ 2-3 چیپٹر جو آپ کو ملنے والے ہیں، اشفاق اللہ خان کا بھی یہ خط کا ہی چیپٹر ہے۔ تو ابھی دھیرے دھیرے یہ کلاس کو امپروو کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی رحمان آگے چل کے کلاس کو بڑھایا جائے گا، 1 سے 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوگی۔ تو اسد اللہ خان غالب کا بنام یہ خط ہے میر مہدی مظروع کے نام۔ بنام مطلب کس کے نام ہے بھائی؟ تو میر مہدی مظروع کے نام۔ کہتے ہیں ہاں صاحب، ہاں صاحب، میر مہدی مظروع کو صاحب کہہ کے پکارتے ہیں، دکھاتے ہیں، تم کیا چاہتے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ مستحد العصر کے مسودے کو اصلاح دے کر بھیج دیا۔ مسودے مطلب کاغذ کہتے ہیں، جو کاغذات ہوتی ہیں، جو فائلیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں فائل مانگا جاتا ہے، تو اسی طرح سے ایک مسودے جو ہے کاغذ کلام کا ایک اکٹھا اجزا کر کے فائل میں، جسے ہم لوگ کیسے ہوتے ہیں اجزا کر کے رکھ دیتے ہیں یا بھیج دیتے ہیں، تو اس زمانے میں اسی چیز کو وہ اردو میں کہتے ہیں مسودے کہہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مستحد العصر کے مسودے کو اصلاح دے کر بھیج دیا۔ دیکھو، سدھار، اصلاح مطلب کیا ہے کہ جو اس میں خامیاں تھی اس کو میں نے پورا کر کے بھیج دیا۔ اب اور کیا لکھوں؟ اب اور کیا لکھوں؟ یعنی تمہاری اس خط میں اور کیا لکھوں؟ جو تمہارے کلام تھے، اور اصلاح تو ہو گیا ہے، تم میرے ہم عمر نہیں جو سلام لکھوں۔ کہتے ہیں خط میں کہ اور کیا لکھوں، اور پھر کہتے ہیں اگلے بار میں کہ تم میرے ہم عمر نہیں، ہم عمر مطلب بیچلر نہیں، جو تم کو سلام لکھوں۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں، دیکھیے، میں فقیر نہیں، پیر نہیں جو دعا لکھوں۔ میں فقیر نہیں اور تم میرے ہم عمر نہیں کہ تم کو سلام لکھوں۔ اور فقیر جو ہوتا ہے، پیر جو ہوتا ہے، دعا دیتا ہے نا، بڑے جو ہوتے ہیں چھوٹے کو دعا دیتے ہیں، تو اسی طرف ہے۔ اور تمہارا دماغ چل گیا ہے، یعنی تم جو ہے بہت من دل تمہارا لگ رہا ہے، دماغ لگ رہا ہے، لفافے پریدہ کرو، یعنی لفافے کھولا کرو، دیکھا کرو، اور مسودے کے کاغذ کو بار بار دیکھا کرو۔ دیکھیے اس بات کو دھیان دیجیے گا، مسودے مطلب پھر وہی جو میں اصلاح کر کے تم کو کلام دیتا ہوں، اس کو پریدہ کرو، یعنی کھولو، دیکھو، بار بار دیکھا کرو، اور بار بار اس کو دھیان سے دیکھا کرو، سیکھا کرو۔ کتنی اچھی استاد نے اپنے شاگرد سے کیا خوب کہا ہے، اور کتنی اچھی سی بات کہی ہے، اور دیکھیے سمجھانے کی طرز میں کہا ہے کہ کاغذ کو بار بار دیکھا کرو، پاؤ گے کیا؟ پاؤ گے کیا؟ کیا پاؤ گے بھائی؟
देखने से क्या तुमको मिलेगा। देखिए आगे बढ़ते हैं क्या कहते हैं। यानी तुमको वह मोहम्मद शाही रोसी पसंद है, यानी तुमको मोहम्मद शाही रोसे पसंद है, यहाँ खैरियत है। यानी तुम्हारे जो मौजू है रोसिर का, जो शायर का जो कलाम है वो तुमको पसंद है, वो तुम्हारा ही कलाम जो हमको भेजे थे इस्लाह के लिए। तो कहते हैं कि मोहम्मद शाही रोसे तुमको पसंद है, और फिर कहते हैं कि यहाँ खैरियत है, हमारे यहाँ खैरियत है, वहाँ की आफियत मतलूब है, यानी तुम्हारे घर का भी हालात हमें मालूम है। खत तुम्हारा बहुत दिन के बाद पहुँचा, जी खुश हुआ। देखिए क्या बात है, आगे बढ़ते जाइए इस खत में। मसौदा बाद इस्लाह के भेजा जाता है, यानी तुम्हारे भी देखो मसौदा तैयार हो रहा है और इसको मैं इस्लाह कर दिया हूँ और भेजा जाता है, यानी भेजने की तैयारी हो रही है, इस खत में बताया गया है। और फिर कहते हैं कि बरखुरदार मिर्ज़ सरफराज हुसैन को दुआ देना, दुआ कहना। ये मिर्ज़ सरफराज हुसैन लगता है कि इनके भाई होंगे मेरे मेहदी मजरू को, तभी उनको कहा जा रहा है दुआ और कहा जा रहा है, क्योंकि छोटों को तो दुआ कहा जाता है। आपने यहाँ देखा होगा कि पहले ही उन्होंने कहा कि मैं फ़कीर नहीं जो दुआ लिखूँ। तो उसी पर कहते हैं बरखुरदार मिर्ज़ सरफराज हुसैन को दुआ देना, दुआ देना और दुआ कहना। और हाँ, हकीम मिर अशरफ अली और मिर अफजल अली को भी दुआ कहना, यानी ये भी छोटे हैं, मिर्ज़ा गालिब से छोटे हैं और लाजमन को लगते हैं कि इनके भाई हैं, तो सबको कहें कि दुआ करना। फिर उसमें कहते हैं लाजमन सआदत मंदी ये है कि हमेशा इसी तरह ख़त भेजते रहो। देखिए इसी तरह ख़त भेजते रहो, क्यों? सच कहिए, अगलों के खतूत की तहरीर की यही तर्ज थी, या और कह रहे हैं कि इसी तरह से ख़त हमेशा भेजा करते रहो। हाय क्या अच्छा सिवा है, जब तक यूँ ना लिखो वो ख़त ही नहीं। मतलब ऐसे जैसे बात होती है दोस्तों में और अपने शागिर्दों में, तो एकदम लग रहा है कि आमने सामने बात हो रही है। कहते हैं कि जब तक इस तरह की बात ख़तों में ना लिखे तो फिर ख़त में मज़ा ही नहीं। चाहे बे आब है अब्र बारा है, नुखल बे मेवा है, खानाए बे चरागा है, चराग बे नूर है। हम जानते हैं तुम ज़िंदा हो और तुम जानते हो कि हम ज़िंदा हैं। हम जानते हैं कि तुम ज़िंदा हो, तुम जानते हो कि हम ज़िंदा हैं। अमरे ज़रूरी को लिख लिया, जावेद को और वक्त और मौकूफ़ रखा। और अगर तुम्हारी खुशनवी इसी तरह के तर्ज़ निगारिश पर मनहशर है तो भाई 3.5 सत्र वैसे भी मैंने लिख दिया है। यानी तुम्हारी तबीयत अच्छी है और इसी तरह से है, तो देखो यही बात करते करते इस ख़त में 3.5 सत्र जो है पूरी हो चुकी लाइनें। फिर कहते हैं क्या नमाज कज़ा नहीं पढ़ते और वो मकबूल नहीं होती, अल्लाह को कबूल नहीं होती। खैर हमने भी वह इबादत जो मसौदे के साथ लिखी थी, देखिए इबारत यहाँ गलती हुई है, हमने भी वह इबारत जो मसौदे के साथ लिखी थी अब लिख भेजी, कसूर माफ़ करो खफा ना हो। यानी अगर कुछ लिखने में भूल गया हूँ तो उसको भी माफ़ कर देना। फिर कहते हैं मीर नसीरुद्दीन एक बार आए थे, उनके यहाँ से मीर मेहदी मजरू के यहाँ से मिर्ज़ा गालिब के यहाँ मीर नसीरुद्दीन एक बार आए थे, फिर ना आए। नसीर फ़ारसी नई मैंने कहा लिखी कि तुम्हारे चचा को या तुमको भेज दूँ। कहते हैं कि एक और कलाम था कि नसीर फ़ारसी नई मैंने कहाँ लिखी और कहाँ लिख मतलब रख दी कि तुम्हारे चाचा को या तुमको भेज दूँ। और नवाब फैज़ मोहम्मद खां के भाई हसन अली खां मर गए। अब देखिए ख़त में ये भी बातें हो रही है कि तुम्हारे घर से या तुम्हारे मतलब जो है करीबी अभी थे मीर नसीरुद्दीन
हमारे यहाँ आए थे, उनके लिए कलाम भी था, मैंने लिखा था। और चचा को लिखना सोचते कि चचा को भेज दे दूँगा या तुमको दे दूँगा, लेकिन मैं भूल गया। फिर उसी दूसरे लाइन में कहते हैं कि नवाब फैज़ मोहम्मद खां के भाई हसन अली खां मर गए। हामिद अली खां की 1,30,000 कई सौ रुपये की डिग्री बादशाह पर हो गई। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें जो बात हो रही है, 1,00,000 डिग्री से मुराद क्या है, सुनिए आगे। कल्लू दरोगा बीमार हो गया था। कल्लू दरोगा बीमार हो गया था, यानी आज उसने गुस्ल सेहत किया। यानी कल्लू दरोगा वही है जो अगले खत में बताया गया था कि इनके जितने भी अजीज़ और अकारीब थे सबको इसने मौत के घाट उतार दी थी। और ये जो है यहाँ बात हामिद अली खां की हुई, उससे भी जो है उनकी संपत्ति जो है वहाँ पर जब्त की जाती थी, छीनी जाती थी, तो इनकी भी जो छीनी गई। और आगे देखते हैं, बाकर अली खां को महीना भर से तब आती है। हसन अली खां के गले में दोगदूद हो गए हैं, यानी कुछ यहाँ पर घाव जख्म के बारे में होते हैं, वो दोगदूद कहते हैं, बल तोड़ वगैरह जैसे होता है, उसी पर दोगदूद हो गए हैं। और शहर चुपचाप कह रहे हैं, यहाँ पर इस कहने का मतलब है हसन अली खां के गले में दोगदूद हो गए हैं, जिससे आवाज़ें नहीं निकलती, बोलियाँ नहीं निकलती, जो गले में बैठ जाता है, बात नहीं कर पाता है इंसान, उस तरह से कह रहे हैं। कहने का मतलब कुछ और, यानी वो वक्त बता रहे हैं कि जब वो वक्त 1857 का हालात, उसके बाद हालात दिल्ली की कैसी है। कहते हैं कि शहर चुपचाप, ना कहीं फावड़ा बजता है, यानी कोई ना हथौड़े से मारता है, ना कुदाल चलता है, ना लोहार की जो दुकानें होती हैं, कुछ कहीं कोई शोर शराबा नहीं, ना सुरंगें लगा कर कोई मकान उड़ाया जाता है, यानी बम में रख कर सुरंग खोद कर मकान, जो बड़ी बड़ी मकानें हैं, आज तो बहुत आसानी से उड़ाए जाते, उस समय जो होती हैं बम रखा जाता था अंदर, उड़ाया जाता था, ना उस तरह की मकानें उड़ाई जाती हैं। आहनी सड़क के आती है, ना कहीं दमदम बनता है। दिल्ली शहर खामोशा है, मतलब यहाँ पर कुछ ये वर्ड जो है फारसी कहेगा, दिल्ली शहर दम खामोश है, कहीं से कुछ आने जाने की कोई सुनाई नहीं देती है। और देखिए कहते हैं, कागज़ निपटर गया और ना तुम्हारे दिल की खुशी के वास्ते अभी और लिखता। कागज़ निपटर गया मतलब कागज़ जो है पूरी हो गई, भर गई, ना तो मैं तुम्हारे दिल के खातिर, दिल के वास्ते और भी कुछ लिखता। ये जो है ख़त मिर्ज़ा गालिब अपने शागिर्द बनाम मीर मेहदी मजरू को लिखा था, और काफ़ी प्यारी बातें इसमें हुई है, इस ख़त में अच्छी सी बातें हुई हैं। तो बच्चों जो हमारे नए साथी हैं और तालिब इल्म हैं, आपसे गुजारिश है कि आप उर्दू पढ़ें, उर्दू को समझें। ये हमारी प्यारी ज़बान है, अच्छी ज़बान है, और हम सब को मिलकर इसे उर्दू को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़बान हमारी मातृभाषा भी है, और हम इसको रोज़ नहीं पढ़ रहे हैं, रोज़ नहीं पढ़ेंगे, रोज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं इसकी इस्तेमाल करेंगे, तो फिर ये ज़बान धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएगी। इसलिए दोस्तों आप इसको रोज़ाना पढ़ें, किताब देखें। मेरे क्लास देने का मकसद ये है कि आसानी, यानी इतनी आसान कर दी जाए कि आप हम मतलब कि ही फीस देकर कोई पढ़ता है, पैसा खर्च करके, आप पैसा क्यों खर्च कीजिएगा, आप पैसा मत खर्च कीजिए। इस क्लास आपके घर तक, आपके दरवाजे तक पहुंच रही है, बस आप उसको मोबाइल उठाकर देखना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को मजबूत करना है, ताकि हमारे जैसे बहुत सारे असातिज़ा हैं जो उर्दू की खिदमत के लिए खड़े हैं, तो आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह ख़त जो है 22 सितंबर 1861 ईस्वी को लिखी गई थी। बहरहाल फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खुदा हाफिज़। फिर आपसे हम मिलते हैं।